السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہمارے چینل مدینہ کا چاند میں آپ سبھی حضرات کا سواگت ہے۔ آپ سبھی حضرات ہمارے چینل مدینہ کا چاند کو سبسکرائب کریں اور گھنٹہ ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ حضرات کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ہماری ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو پیغام، جو بات آپ حضرات سن لیں تو آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارا آج کا پیغام ہے امت محمدیہ کے نام، اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے غلامان رسول کو ایک اہم نصیحت۔ مانو یا نہ مانو یہ آپ کی مرضی، لیکن سمجھانے سے فرق ضرور پڑتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ملاحظہ فرمائیے، ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالی جس کو چاہے حکومت دے۔ اسی بات کے پیش نظر میں قرآن پاک کی 3 پارے کی آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرما رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ویرانے گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے۔ ویرانے گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ تمہاری داستابی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستابی نہ ہوگی داستانوں میں۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات دور پرفتن کے ماحول سے واقف ہیں کہ آئے دن یہ فرقہ پرست طاقتیں اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر کے ملک کا ماحول خراب کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مسلمانوں کے قتل عام کا اعلان ہوا، مگر اس حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اگر ہم اسی طرح خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہے تو صرف اسلام اور مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہمارے لیے ہماری زندگی کا پہلا مقصد ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہرا دینا ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں۔ لہذا انہی حالات کے پیش نظر میں آپ حضرات کے سامنے لائیو آیا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی
जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए, ए मेरे रब, मुल्क के मालिक, तू जिसको चाहे हुकूमत दे, जिससे चाहे हुकूमत छीन ले, और तू ही है जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही दस्ते कुदरत में हर तरह की खैर है और तू सब कुछ कर सकता है। मोहतरम सामीन किराम, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुनकर आप हजरात को पता लग गया होगा, मैंने अपने इस टॉपिक का जो नाम रखा है, अल्लाह जिसे चाहे हुकूमत दे। और बेशक यही बात है कि मेरा परवरदिगार जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है। इसी के पेश नज़र मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूँ कि मेरे उस्ताद, जिनके भी उस्ताद थे मौलाना खलील बदायूनी, मेरे उस्ताद अब्बू जी ने मुझसे एक वाकया बयान किया। वो कहते हैं कि उनके भी जो उस्ताद थे मौलाना खलील साहब बदायूनी, उन्होंने बयान किया कि मौलाना खलील साहब और उनके बड़े भाई मुर्शिद की तलाश में, पीर की तलाश में यहाँ से जयपुर पहुँचे। जयपुर पहुँचने के बाद उन्होंने रात को एक मस्जिद में क़याम किया। मस्जिद में ठहरे, इशा की नमाज हो गई। उसके बाद दोनों भाइयों ने जब सोने का इरादा किया, तस्बीह तहमीद कहने के बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, आंखों में झप्पी आई, क्या देखते हैं कि मस्जिद में कोई आ गया। जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि एक कुत्ता था जो उनकी पायती पर आकर उनको जगाने की कोशिश कर रहा था। मौलाना खलील साहब का बयान है, वो और उनके भाई दोनों ने उस कुत्ते को वहां से हाँका और मस्जिद की किवाड़ें खोली और उस कुत्ते को बाहर कर दिया। फिर वापस आकर अपनी जगह पर लेट गए। इसी तरह से एक आध घंटे बाद फिर यही हुआ कि कुत्ता आया, उनकी आंख खुली, उन्होंने उस कुत्ते को हाँका, मस्जिद की किवाड़ खोलकर बाहर निकाल दिया और मस्जिद की किवाड़ अंदर से फिर लगा ली। तीसरी मर्तबा यही हुआ कि वो कुत्ता उनके पांती पर फिर आ गया। रात के करीब तकरीबन 12 से ऊपर का टाइम था। उन्होंने उस कुत्ते को बाहर निकाल दिया, किवाड़े लगा ली। मौलाना खलील साहब के बड़े भाई कहने लगे, मौलाना साहब, क्या आप इस बात पर गौर नहीं करते कि आप जब भी कुत्ते को बाहर निकाल के आते हैं तो किवाड़े अंदर से लगा लिया करते हैं, लिहाजा कुत्ता किवाड़े लगी होने के बावजूद मस्जिद के अंदर कैसे आ जाता है। मौलाना खलील साहब समझ गए और उनके भाई भी समझ गए कि हाँ, ये हकीकी जो एक जानवर होता है कुत्ता, वो कुत्ता नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की दूसरी मखलूक जिन्नात में से है। उन दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया, कहने लगे कि आज ये जिन्नात हमें इस मस्जिद में सोने नहीं देगा, लिहाजा हमें रात तो कहीं पर काटनी है, लिहाजा चलते हैं बाहर दरिया के किनारे घूमने के लिए। दोनों भाई रात के 12-1 बजे का टाइम था, दरिया के किनारे चलते जा रहे हैं। चलते चलते उन्हें दूर एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी में एक चिराग जल रहा था, रोशनी दिखाई दी। उस चिराग के करीब पहुंचे, वहां पर झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के अंदर एक अल्लाह के वली अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। जब वो अल्लाह के वली इबादत करते करते पूरे मुकम्मल तौर पर उन्होंने 2-3 घंटे इबादत की और वो दोनों भाई मौलाना खलील और उनके बड़े भाई एक तरफ खामोश बैठे रहे। जब वो अल्लाह के वली इबादत से फारिग हुए, उनसे दुआ सलाम किया, मुसाफा किया, एक दूसरे की खैरियत पूछी और मस्जिद वाला वाकया भी बयान किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम यूपी से आए हुए हैं, बदायूं शरीफ से, और हमें पीरे कामिल की तलाश है। उनमें बहुत सारी गुफ्तगू हुई। उसी गुफ्तगू के दौरान जो अल्लाह के वली थे दरिया के किनारे झोपड़ी पर
बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो कहने लगे, मौलाना आज मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाता हूँ जो आज तक तुमने किसी से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वो वाकया है जो न किसी किताब में आया और न किसी कुतुब में आया, न किसी किताब में आया, न किसी तकरीर में आया, क्योंकि इस वाकये का मैं खुद शाहिद हूँ, मेरे साथ ये वाकया पेश आया है। वो अल्लाह के वली कहने लगे कि मौलाना साहब, जिस वक्त हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उनकी हुकूमत दिल्ली पर थी, उस वक्त मैं उनकी फौज में तमाम पुलिस वालों का कमांडर था, सबका सरदार था। मेरी ड्यूटी थी उस रात को पहरा देने की। मैं दिल्ली की सड़कों पर पहरा दे रहा था। मैंने क्या देखा कि उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर वो लोग जिनको हम अपनी भाषा में पागल कह दिया करते हैं, सिर्री समझा करते हैं, आजकल तो वो लोग कम दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हीं पागलों के भेष में आजकल ढोंगी कुछ लोग आ जाते हैं तो किसी का राज मालूम करने आते हैं, लेकिन हकीकत में आज से करीब 10 या 20 साल पहले और 30-40 साल पहले और 50-100 साल पहले जितने वो लोग थे, वो कोई आम पागल नहीं थे, वो सिर्री नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के वली हुआ करते थे, जिनको मजजूब कहा जाता है। वो मजजूब जिन्हें अपने तन की फिक्र नहीं होती, अपने खाने की फिक्र नहीं होती, अपने कपड़ों की फिक्र नहीं होती, अपने रहने सहने का कोई ख्याल नहीं होता। वो अल्लाह के वली कहने लगे, मौलाना साहब, दिल्ली की सड़कों पर जब हम रात में पहरा दे रहे थे तो वही मजजूब लोग कोई इधर से इधर आए, इधर भाग जाए, इधर से आए, इधर भाग जाए, कई तरह के कई मजजूब, कोई इधर आता इधर भाग जाता, इधर आता इधर भाग जाता। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मैंने हर मजजूब से पूछना चाहा कि भाई कोई बताओ क्या वजह है, क्या बात है, तुम क्यों भाग रहे हो, इस तरह तुम परेशान क्यों हो, इतनी जल्दी जल्दी इधर से इधर जाते हो, इधर से इधर आते हो, आखिर माजरा क्या है। कोई भी मजजूब उस बात को बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो वो अल्लाह के वली कहते हैं, मौलाना साहब, मैं उस वक्त जवान था, मेरी जवानी थी, फौज का कमांडर था, मैंने अपनी ताकत से एक मजजूब को जबरदस्ती पकड़ लिया। जैसे ही उस मजजूब को जबरदस्ती पकड़ा, वो मजजूब मेरे हाथ में आते ही बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो जमीन पे गिर जाता है। जमीन पर गिर गया, मैं डर गया कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, जैसे तैसे उसे होश में लाया। जब वो होश में आया, मैंने उससे पूछा, भाई बताओ ये माजरा क्या है, तुम लोग इधर से इधर क्यों भाग रहे थे, इतनी देर से मैं तुमसे पूछ रहा था कि बताओ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या माहौल है जो तुम इधर से इधर भाग रहे हो। एक भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम बेहोश हो गए, अब मुझे बताओ। तो वो कहने लगे, अल्लाह के मजलूम कि ए कमबख्त, तूने हमें क्यों पकड़ लिया, अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर हमें मोहलत दे दी होती तो हम तुझे पूरा वाकया खुद ही बता देते। वो पुलिस वालों के जो सरदार थे, फौज के कमांडर, कहने लगे सिपाहियों के सरदार कि अब बताओ आखिरकार हुआ क्या था, तुम लोग भाग क्यों रहे थे। कहने लगे कि आज हिंदुस्तान के अंदर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी तशरीफ लेकर आई है, हम आज खुश हैं, उनकी खुशी में, उनकी तशरीफ आवरी की खुशी में हम मसरत में झूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सवारी आई जरूर है, लेकिन उनके साथ बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर ये लियाकत नहीं रही है, ये शऊर नहीं रहा है कि अब वो हुकूमत कर सकें। हिंदुस्तान के मुसलमान बिगड़ चुके हैं, उन्होंने इस्लाम पर जो सही माना में चलना चाहिए उस पर चलना छोड़ दिया है। लिहाजा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मर्जी है कि मुसलमानों से लेकर हुकूमत को किसी और के हाथ में दे दिया जाए, हिंदुस्तान की बागडोर को किसी और के हाथ में दे दिया जाए। बड़े पीर साहब चाह रहे हैं कि हुकूमत को अंग्रेजों को दे दी, ईसाइयों को दे दिया जाए, लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से आप कह नहीं रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बताई है कि या रसूलल्लाह, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आप ऐसा करें ख्वाजा गरीब नवाज को बुलाएं और उनसे मशवरा ले लें, वो किसके हाथ में हुकूमत देने की कहते हैं, कि हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों से लेकर हिंदुओं को दी जाए
या फिर ईसाइयों को दी जाए। इतनी बात हुई थी, एक कासिद बुलाने के लिए गया था और इतने में तूने मुझे पकड़ लिया, लिहाजा मेरा ख्वाब में महवियत से टूट गया, मेरी महवियत टूट गई, ख्वाब अधूरा रह गया जो मैं अपने आका का दीदार कर रहा था। अब पता नहीं क्या फैसला हुआ है, हुकूमत किसको दी गई है। तो वो पुलिस वालों के जो अफसर थे, जो सरदार थे, वो मौलाना खलील साहब से कहते हैं, कसम खुदा की उस रात में जब दिल्ली में पहरा लगा रहा था, सुबह होते होते अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया। मुसलमानों याद रखो, अल्लाह ताला ने जैसा कि कुरान पाक में फरमाया कि सारी कायनात अल्लाह की बादशाहत है, जिसको चाहे दे और जिससे चाहे छीन ले। अल्लाह ही है जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, और मेरा परवरदिगार सब कुछ कर सकता है। मुसलमान जब सही थे तो मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की। जब मुसलमान बिगड़ गए, मुसलमानों ने दीन इस्लाम पर चलना छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने उनसे हुकूमत को छीन लिया और अंग्रेजों के हाथ में थमा दिया। 200 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत की, और जब अंग्रेज भी बिगड़ गए, अंग्रेजों ने जुल्म और ज्यादती शुरू कर दी, तो अल्लाह ने उनसे हुकूमत लेकर कांग्रेस के हाथ में दे दी। और जब कांग्रेस 70 साल तक हुकूमत करती रही और कांग्रेस की तरफ से जुल्म सितम बढ़ते रहे, तो अल्लाह ने हुकूमत को लेकर बीजेपी के हाथ में दे दी। और जब आज 7 साल हो चुके तो ये भी जुल्म सितम करने लगे। जैसा कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की, लेकिन उन्होंने इतने जो पुराना दौर था उसमें जुल्म नहीं किया, इसलिए उनकी हुकूमत लंबी चलती रही। लगातार 700 साल तक हुकूमत करते आए। लास्ट के दौर में आकर जो लोग होंगे जिन्होंने दीन पर चलना छोड़ दिया होगा, उनकी वजह से जब मुसलमान बिगड़ गए तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों से हुकूमत को छीनकर अंग्रेजों को दे दिया। यानी मुसलमानों ने जुल्म किया 700 साल के अंदर, लेकिन इतना जुल्म किया और फिर अंग्रेजों को हुकूमत दे दी, तो अंग्रेजों ने 200 साल के अंदर इतना जुल्म कर दिया और अंग्रेजों से लेकर इस हिंदुस्तान की हुकूमत को कांग्रेसियों के हाथ में दे दी, तो कांग्रेसियों ने इतना जुल्म कर दिया। और जब 70 साल के अंदर और जब कांग्रेसियों ने भी जुल्म किया, तो अल्लाह ताला ने उस हुकूमत को लेकर बीजेपी वालों के हाथ में दे दी। तो इन्होंने 7 साल के अंदर इतने जुल्म किए कि इन्होंने सारी हदें पार कर दी। मुसलमानों याद रखो, अल्लाह ताला ही है जिसको चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे हुकूमत छीन ले। और अब आया कि जो मैंने ये वाकया सुनाया, आपको रिवायत सुनाई, कोई लोग ये एतराज कर सकते हैं कि जब अल्लाह हुकूमत देता है तो नबी क्यों आए, नबी ने कैसे हुकूमत दी, नबी ने कैसे पहुंचाई, बड़े पीर साहब उनके साथ क्यों थे, ख्वाजा गरीब नवाज उनके साथ थे। तो मुलाहिजा फरमाइए, हदीस पाक में फरमाया है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युक्ति, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे देता है और मैं बांटता हूं। अब आप अंदाजा कीजिए कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला देता नहीं है। जब अल्लाह ताला सब कुछ देने पर कादिर है तो मेरे नबी सब कुछ बांटने पर भी कादिर हैं। अल्लाह ताला को एक जरिया चाहिए, अल्लाह ताला एक वसीला तलाश करता है। अल्लाह ताला तो इस बात पर भी कादिर है कि वो खुद रूह कब्ज कर ले, खुद पानी बरसा दे, खुद वही भेज दे, खुद कब्र के अंदर सवाल जवाब कर ले, लेकिन उसने हर काम के अंदर एक एक फरिश्ते को मामूर कर रखा है। पानी बरसाने वाले फरिश्ते मीकाईल अलैहिस्सलाम, वही पहुंचाने वाले फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम, नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते किरामन कातिबीन, कब्र में सवाल करने वाले मुनकिर नकीर, रूह कब्ज करने वाले इजराइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो बनाई है, दुनिया आलम असबाब है, दुनिया आलम असबाब है, सबबों पर चलती है, एक दूसरे का जरिया है। मुसलमान 700 साल तक हुकूमत करता रहा। जब बिगड़ गया,
अंग्रेजों के हाथ में हुकूमत आई, वो भी बिगड़ गए, कांग्रेसियों के हाथ में हुकूमत आई, वो भी बिगड़ गए, बीजेपी के हाथ में हुकूमत आई। और अब क्या हो रहा है,